students, welcome to Success Series. My name is Pari and today we'll be taking up chapter Electricity of class 10th. So let's get started. सबसे पहले हम multiple choice questions देखेंगे. Now children, let's see the first question. A battery of 10 volt carries 20,000 coulomb of charge through a resistance of 20 ohms. The work done in 10 seconds is... So students, work done is equal to charge into the voltage. जो हमारे पास चार्ज है वो 20 कूलम है और जो वोल्टेज है वो 10 है. दोनों को मल्टीप्लाई करके the answer is 2 into 10 to the power of 5. Therefore, B is the correct option. Now let's move to the next question. The next question is to get 2 ohm resistance using only 6 ohm resistors, the number of them required is. The correct answer, dear children, is 3. हमें 3 रेजिस्टेंसेस चाहिए होंगे तब जाके हम 2 ओम का नेट यानी टोटल रेजिस्टेंस बना सकते हैं. तीनों रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में लगा देंगे. तो तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने के बाद हमारा 1/r की वैल्यू 3/6 आएगी यानी r 2 ओम आएगा. इसलिए हमें ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस रिक्वायर्ड होंगे जिससे हमारी वैल्यू 2 ओम्स आए. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The temperature of a conductor is increased. The graph best showing the variation of its resistance is. So children, अगर इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप ग्राफ को प्रॉपरली स्टडी करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द रूल आंसर करेंगे. अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की. सो द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट. Let's move to the next question. So children, यहाँ पे question given है. A boy records that 4,000 joule of work is required to transfer 10 coulomb of charge between 2 points of a resistor of 50 ohm. The current passing through it is. So children, इस तरह के questions में सबसे पहले हम formula देखेंगे कि कौन सा formula use हो सकता है. So work done होता है Q into V. And V is equal to I into R. यानी work done is equal to Q into I into R. हमें यहाँ पे करंट पूछा है तो करंट हो जाएगा W upon IR. Now we will put all the values. W है 4,000, Q है 10 और R है children 50. So इनको solve करके हमें 8 ampere मिल जाएगा. So the correct answer is C part. Now children, let's move to the next question. So children, the resistance whose VI graph is given below is. इनमें से कौन सा correct answer होगा dear children? So यहाँ पे हम slope का use ले सकते हैं. What is slope? Slope is M, which is change of y upon change of x. तो अगर हम 9 minus 0 upon 15 minus 0 करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 9/15. सिंप्लीफाई करने पे 3/5 ohms. So 3/5 ohms is the correct answer. Now children, let's move to the next question. For children, very short answer type questions हम 1 marks के अब देखते हैं. So dear learners, we need to define electric potential. Electric potential at any given point in an electric field is defined as कि कितना वो work done करेगी किसी unit positive charge को infinity से उस point तक लाने के लिए electric field के अंदर. Now let's move to the next. For children, अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं. State the relation between work, charge and electric potential. So children, the formula is V is equal to work upon charge. Let's see the next question. Dear learners, the next question is we need to define 1 volt electric potential. So 1 volt की electric potential हम किसे कहते हैं? जो कि 1 जूल का वर्क करे 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. नाउ
Let's move to the next question. Is electric potential a scalar or a vector physical quantity? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए नहीं कैलकुलेट होती. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points? Work done per unit charge in moving a positive charge from one point to the another is called as potential difference between 2 points. Let's move to the next question, dear children. State the relation between current passing in the conductor, number of electrons flowing through any cross-section of the conductor, magnitude of charge on an electron, and time. So the correct answer, dear children, is I is equal to NE divided by T. So it is the total number of electrons divided by the time that will give us the current. Let's move to the next question. So dear learners, the next question is define 1 ampere electric current. 1 ampere electric current बराबर होता है 1 कूलम का कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया होगा किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकंड के अंदर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो चिल्ड्रन, हमारा नया क्वेश्चन है कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर. सो जब भी चिल्ड्रन हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं किसी वायर के अंदर, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. सो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. नाउ लेट्स सी न्यू क्वेश्चन. 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं. The question is state the law that gives the relationship between the potential difference across the 2 ends of the conductor and the current flowing through it. So children, Ohm's law ये कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के जो कि एंड्स ऑफ द कंडक्टर में स्टैब्लिश होगी. ऑल्सो चिल्ड्रन, टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस को सेम होना चाहिए जब भी हम ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे हों. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So children, the voltage current VI graph of a metallic circuit at the 2 different temperature T1 and T2 is shown. Which of the 2 temperature is higher and why? So ये ग्राफ का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि the voltage current VI graph of a metallic conductor at the 2 different temperatures T1 and T2 is shown in the figure, and at which temperature is the resistance higher. So यहाँ पे हमें पता है कि V upon I R के बराबर होता है. V upon I is equal to R in accordance with the Ohm's law. तो अब हम देखेंगे कि किस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है. तो जितना आपका कर्व स्टीपर होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा. तो T2 का स्लोप हम देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप है. तो क्योंकि इसका स्लोप काफ़ी स्टीप है यानी इसका रेजिस्टेंस भी काफ़ी हाई होगा. So children, the slope of IV graph is equal to the resistance of the metallic conductor. Since the slope of the IV graph at temperature T2 is greater than the slope of IV graph at temperature T1, therefore the resistance at T2 is greater than T1. Since the resistance of a metallic conductor increases with the increase in temperature, तो T2 का temperature T1 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा. Now let's move to the next question. The next question, dear children, is how does the resistance of the wire vary with its cross-sectional area? So जो resistance होता है वायर का वो cross-sectional area के inversely proportional होता है. कैसे? R is equal to rho L by A के formula से.
जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा डियर चिल्ड्रन, उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा. मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Also, more the cross-sectional area, less will be the resistance. यानी ये inversely proportional होते हैं एक दूसरे से. Now let's move to the next question. Let's see this question. State Joule's law of heating. For children, Joule's law of heating ये कहता है कि the amount of heat which is produced in the conductor वो directly proportional होता है square of electric current passing through the conductor के, directly proportional to the resistance of conductor and directly proportional to the time. So I square into R into T हमें heat देंगे कि कितनी heat generate होगी उस conductor के अंदर. Now let's move to the next question. Children, let's see this question. हमें डिफरेंसेस लिखने हैं वोल्टमीटर और एमीटर के बीच में. एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दो पॉइंट्स के बीच में एस्टैब्लिश होता है उसे मेजर करता है. एमीटर कनेक्टेड होता है सीरीज में एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, और वोल्टमीटर कनेक्ट होता है पैरेलल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर और या फिर रेजिस्टर पे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें इस क्वेश्चन में दो वायर्स गिवन है, एक कॉपर की है और एक मैंगनीज की है, जिनकी दोनों की ही लेंथ बराबर है, रेजिस्टेंस भी बराबर है. तो हमें बताना है कौन सी वायर थिकर होगी, कौन सी वायर ज्यादा थिक होगी. गिवन हमें यह है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर की कम होती है रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज के मुकाबले. सो ऐसे क्वेश्चंस में हम R इज इक्वल टू रो L बाय A वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी A इज इक्वल टू रो L बाय R, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है और एरिया रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है. तो रेजिस्टिविटी कॉपर की कम है तो एरिया या फिर थिकनेस भी कॉपर की कम होगी. इसका मतलब ये है मैंगनीज वायर ज्यादा थिक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें दो वायर्स हैं जिनकी लेंथ सेम है और उनका मटेरियल भी सेम है. अगर मटेरियल सेम है यानी उनकी रेजिस्टिविटी भी सेम है. A ज्यादा थिक है B के मुकाबले, तो हमें पता लगाना है कौन सा एमिटर A1 या फिर A2 विल इंडिकेट हायर रीडिंग फॉर करंट. नाउ चिल्ड्रन, करंट तभी हाई होगा अगर रेजिस्टेंस लो होगा. सो रेजिस्टिविटी और लेंथ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दोनों वायर्स की जो कि सेम है, और जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का A ज्यादा थिकर है B के मुकाबले. फॉर रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टिविटी दोनों ही सेम है दोनों वायर्स की, और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसी की वजह से क्योंकि A वायर थिकर थी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए एमिटर A को सीरीज में हमें कनेक्ट करना होगा विद द वायर A दैट वुड इंडिकेट हायर रीडिंग फॉर करंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर चिल्ड्रन, हमारे पास दो स्टूडेंट्स जो एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो दो रेजिस्टर्स लेते हैं R1 और R2 और उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं. R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, तो किस तरीके के हमें डायग्राम्स मिलने चाहिए, कौन सा करेक्ट डायग्राम होना चाहिए. फॉर चिल्ड्रन, इफ वी सी हियर, जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होता है वो स्लोप ऑफ IV कर्व के बराबर होता है. इट मीन्स जो रेजिस्टेंस हाई तभी होगा अगर IV कर्व का जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ज्यादा स्टीपर होगा. यहाँ पे R1 का जो लाइन का जो कर्व है, जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीपर है, इसी की वजह से R1 will be greater than R2. इसीलिए डायग्राम 1 is correct whereas डायग्राम 2 is wrong. R2 ज्यादा स्टीप नहीं है. This is a wrong thing. Now let's move to the next question. So children, हमें एक सिस्टमैटिक डायग्राम बनाना है एक बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स की यूज करके, 3 रेजिस्टेंस यूज करके जो कि पैरेलल में होने चाहिए. एक एमिटर यूज करना है हमें इसी सर्किट में, वोल्टमीटर भी यूज करना है. तो हम देख सकते हैं 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं,
12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे एक एमिटर सीरीज में यूज किया गया है क्योंकि एमिटर को हम हमेशा सर्किट की सीरीज में यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल लगाया है रेजिस्टेंसेस के, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। Now let's move to the next question. Children, the next question is, why an emitter is likely to burn out if you connect it to in the parallel, and why is the series arrangement not found satisfactory for domestic lights? Emitter को हमें हमेशा सीरीज में लगाना होता है। एमिटर एक काफ़ी लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, तो अगर हम उसे पैरेलल में लगा देंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा हाई करंट फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बर्न हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, हम सीरीज अरेंजमेंट में डोमेस्टिक लाइट्स को नहीं लगाते। इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अगर एक भी लाइट फ्यूज होगी तो एंटायर सर्किट की जितनी लाइट्स होंगी वो भी फ्यूज हो जाएंगी उसके साथ। सो इफ द डोमेस्टिक लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन ऑल द लाइट्स विल बी स्विच्ड ऑफ इवन इफ ओनली वन लाइट फ्यूजेस आउट। तो इसीलिए पैरेलल कनेक्शन ज्यादा बेटर होता है हमेशा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप. So we have long answer type questions now, dear children. Now children, let's see another question. So we need to describe an experiment to study the factors on which the resistance of the conductor or conducting wire depends. So एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें फैक्टर्स पता लग पाए कि इन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, उसके लिए हम ऐसा सेटअप ले सकते हैं जिसमें हम एक रेजिस्टेंस एमिटर की और वोल्टमीटर यूज करने पड़ेंगे। डिपेंडेंस ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ना हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने कोई कॉपर वायर ले ली जिसकी लेंथ L है और उसे A और B के टर्मिनल्स के बीच में लगा दिया। फिर हम एमिटर पे उसकी रीडिंग नोट करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि हम कोई और लेंथ की वायर यूज करें। इधर हम 2L लेंथ की वायर यूज कर रहे हैं, फिर हम उसे A और B टर्मिनल के बीच में लगाएंगे और फिर हम रीडिंग नोट करेंगे। तो हमें रीडिंग ये पता मिलेगी कि जो रीडिंग होगी एमिटर की वो दूसरे केस में हाफ हो जाएगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस. So it is found that the reading of the ammeter, that is the electric current, in the second case is half of the reading of the emitter in the first case. यानी वो initial की आधी रह जाएगी. The other factor is that the resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor. So resistance is proportional to the length. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा. The resistance of the conductor is inversely proportional to the area of the cross section of the conductor. So resistance inversely proportional होता है area के. Also dear learners, अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर कैसे वेरी करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है. अब हम जो वायर लेंगे उसकी लेंथ तो सेम रखेंगे बट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर देंगे. जो फर्स्ट वाली वायर थी उसका अगर क्रॉस सेक्शन जो है, सेकेंड वाली क्रॉस सेक्शन वाली वायर का एरिया उससे दुगना ले सकते हैं हम. हम एमिटर की रीडिंग नोट करेंगे. रीडिंग नोट करने के बाद हम डिस्कनेक्ट करेंगे फर्स्ट वायर को, उसकी जगह पे सेकेंड वायर लगाएंगे और फिर दोबारा से एमिटर की रीडिंग नोट करेंगे. तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एमिटर की रीडिंग थी वो ज़्यादा थी फर्स्ट केस में, फर्स्ट वायर के केस में जो कि थिक वायर थी जब वो A और B टर्मिनल के बीच में लगाई गई थी, एज कम्पेयर टू द सेकेंड वायर. तो इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन वायर इज मोर देन दैट ऑफ द थिक वायर, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. Now children, there is an effect of the nature of the material on the resistance. अगर हम दो आइडेंटिकल वायर्स लेते हैं, कॉपर की और एल्यूमिनियम की, और उनको टर्मिनल A और B के बीच में लगाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो एमिटर की रीडिंग कॉपर वायर के लिए शो कर रही थी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम वायर्स. का ये मतलब है कि एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है और कॉपर का कम होता है. सो देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज लेस. Hence, the resistance of a wire or a conductor would also depend upon the nature of the material that we are using. Dear children, the next effect is the effect of temperature on the conductor. तो अगर हम temperature किसी का change करेंगे तो resistance पे भी फर्क पड़ेगा. जितना ज़्यादा temperature होगा उतना ज़्यादा resistance established मिलेगा. So जिन factors पर resistance of the conductor depend करता है वो है length, area of the cross section, nature of the material and its temperature.
Now let's see the next question, children. What is Joule's heating effect? And we have to list the applications of Joule's heating effect in our daily life. Joule's heating effect, children, उसका एक लॉ ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर की वो करंट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. Also, dear students, it is directly proportional to the resistance. Also, students, it is directly proportional to the time. So, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आती है वो होती है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी के बराबर. एंड इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं. देयर आर 4 एप्लीकेशंस, चिल्ड्रन. हमें एप्लीकेशंस कोई भी हम एग्जाम में यूज करके उसका एग्जाम्पल कोट करके डिस्क्राइब कर सकते हैं. बहुत जगहों पे हीटिंग इफेक्ट यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, वाटर हीटर्स में. एंड स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है किस तरीके से हम जब इनको मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे अप्लायंसेस हॉट हो जाते हैं. ऑल्सो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग. और ऑल्सो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है निक्रोम वायर का. जो एलिमेंट हम इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं निक्रोम. निक्रोम का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं हम इलेक्ट्रिक हीटर में. जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टिंग वायर्स में, जो कि कॉपर और एल्यूमिनियम से बनी होती है, वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता. तो हमारे लिए बेटर होता है विदाउट इट गेटिंग वेरी हीटेड अप निक्रोम ऑन इट्स ओन. इट कैन हेल्प टू मेक द हैंडल्स, make the other things cooler and make the work of the electric heater much more better. Now children, we'll talk about the filament of an electric bulb. ये टंगस्टन नाम के मटेरियल से बना होता है जिसका काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. जब हम इस फिलामेंट ऑफ द बल्ब को एक ग्लास एनवेलप के अंदर इनक्लोज कर देते हैं और उसमें हम काफ़ी सारी इनएक्टिव गैसेस जैसे नाइट्रोजन और आर्गन रख देते हैं, इसकी वजह से जो लाइफ होती है टंगस्टन फिलामेंट की वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. जो रेजिस्टेंस होता है इस थिन फिलामेंट का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हीट जो प्रोड्यूस होती है वो विथस्टैंड कर पाता है. इसी की वजह से ये वाइट हॉट ज़रूर होता है और काफ़ी ज़्यादा हीट और लाइट एमिट आउट कर पाता है. ऑल्सो चिल्ड्रन, अनदर एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. जो हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज देखते हैं डियर चिल्ड्रन, ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारी घर की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से अगर एक्सेसिव का करंट हमारे घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फ्यूज उस पूरे सर्किट जो हमारी लाइंस होती है घरों की उनको काट देता है. इलेक्ट्रिसिटी काट हो जाती है तो जो ओवरलोड और ओवर पावर और स्पार्क और बर्स्टिंग ऑफ घर के जितने भी हैवी लोडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बच पाते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ द मटीरियल फॉर मेकिंग द फ्यूज वायर आर कॉपर और टिन लेड एलॉय. इसमें क्या होता है, अगर लार्ज करंट फ्लो भी करता है सर्किट के अंदर और वो फ्यूज वायर से पास भी करता है तो एक बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है. क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, इसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है. मेल्ट होने के बाद सर्किट ब्रेक हो जाएगा. सर्किट अगर ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा. सो डियर लर्नर्स, ये हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि ये बर्निंग जो प्रोड्यूस हो पाती है अगर कोई लीकेज ऑफ करंट होता है या एक्सेसिव करंट होता है, उससे हमारे घरों के ऑब्जेक्ट्स और डिवाइसेस को बचाता है. नाउ चिल्ड्रन, वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. हमें इसमें पोटेंशियल ड्रॉप बताना है अक्रॉस द रेजिस्टेंस 1. वी हैव टू टेल द करंट I2 थ्रू द रेजिस्टेंस R2 एंड द पावर. नाउ लेट्स सी द आंसर चिल्ड्रन. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो इनका नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस रेजिस्टेंस के सीरीज में आएगा. सो सबसे पहले हम इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल नेट आउटपुट निकालेंगे और जो आंसर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको हम सीरीज में रखेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ. सो द नेट आंसर दैट विल गेट विल बी 5.10 ओम. अगर हम करंट कैलकुलेट करते हैं R1 के अक्रॉस, दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट विच इज 12 अपॉन 5.1 which we have just calculated. Answer will come out to be 2.35 ampere.
अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 करते हैं दैट इज इक्वल टू I1 इंटू R1 विच इज 2.35 इंटू 1, क्योंकि 1 ओम रेजिस्टेंस गिवन था तो 2.35 वोल्ट इज द आंसर. We have to find the current R2. In order to calculate the current through R2, we should be knowing the values of the voltage. So that will be equal to V minus V1, which is 12 minus 2.35 volt, which is 9.65 volt. अगर हमें कैलकुलेट करना है करंट विच विल बी इक्वल टू V2 अपॉन R2, दैट विल बी इक्वल टू 9.65 अपॉन 6 ओम्स. ये 6 ohms कहाँ से आया है? 6 ohms is R2 resistance. So we have put its value here. The current that we'll get is 1.61 ampere. Also children, हमें यहाँ पे पावर बतानी है कि क्या dissipated होगी. So P2 will be equal to I square R, which we already know. This is the formula for power, I square into R. So it becomes 1.61 raised to the power of 2 multiplied by 6. So the answer will be 15.5 watts. This is the unit of power. So thank you children. If you like the video, do subscribe, do like our channel. Thank you. All the best for exams.